that we would not ask these questions only to a man. क्योंकि patriarchy है, male dominance है, so the response which comes from a man, I would say, almost entirely different than the same questions with the woman. That is my conclusion. Family में बच्चों के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो कई opportunities ये थे कि at that time there were many children, so the father would not know the name and the order of the birth of the children. Difficult. वो recall, उसके बाद कौन पैदा हुआ वो पूछेगा, वो अंदर बैठी हुई है, तो ऐसे हालात थे पहले, ऐसे हालात थे पहले. I think all that has changed now. हाँ, और ये सिर्फ मुस्लिम्स घरों में नहीं हो रहा है, मुस्लिम it's happening everywhere. Okay. Then the second anecdotal, before I come to the real issue. So during this process, I got married. Shana's, Mysore, my Bangalore. At that time, I was working to a professor, Professor J.C. Caldwell, an economist and a demographer from Australian National University. I have to invoke him because and the way we used to do interviews is we would write, and I used to write in English, but I am putting questions in local language. Kabhi Urdu, kabhi Kannada, only two languages, English mein nahi ho raha. Then I would translate that and write. And then, let us say I have done 5 interviews in the whole day. That is what we could do. And then I had to go and sit with Professor Caldwell in the evening. और वो जो इंटरव्यूज करते हैं, ये आप सोचिए हमारे देश को पहचानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ये न्यूज़पेपर टॉप हेडलाइन से हमारे देश को नहीं परखी है. ये बहुत ज़रूरी है. तो इवनिंग में लोगों को बात करने के लिए खेती बाड़ी करने वाले लोग क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं तो उनको पकाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, गाँव को खिलाना पड़ता है, फिर उनको ले जाना पड़ता है. कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल चलना पड़ता है, उनके पास वक्त ही नहीं है. अब ये लेडी को कैसे बात करेंगे, और ये जो मैन है उसके कई तो इट वॉज नॉट ईजी टू गेट देयर uninterrupted, let us say 1 hour. It was not easy. तो कभी हम नहीं you come night 8 o'clock हम मिलेंगे, तो हम रात 8 बजे भी जाते वहाँ पे. I know it was 24 hours. मगर वो करने के बाद there was a professor who was sitting. तो रात के 10, 11, 12 कभी 1 बजे तक उस दिन का जो इंटरव्यूज हुआ था, identifying those households, because the professor is also moving around and he's looking around and he's making his notes, and then we will explain it to him in Hindi and in English. The information we collected in another language, which is Kannada, in Karnataka. अब देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहा है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको समझाने में वक्त लग रहा है. एंड द प्रोफेसर इज posing more questions, जैसा आपने बोला ना अभी पेन और पेपर लो. That is when I remembered my professor. पेन और पेपर लो और लिखो. That is what we did. तो उस वक्त उन्होंने within 3 months of my work with him, रात 11 बजे they were a family, professor wife also a professor, and a son who was a student, anthropologist. तो रात 11 बजे उन्होंने बेटे को भेजा कि कल शरीफ. मैं बोला रात 11 बजे बुला रहे प्रोफेसर को. गया प्रोफेसर ने बोला शरीफ, I read your interviews and I like them and you have a good understanding of how to pose good questions and write that in English and I am able to understand them. मैं बोला चलो तारीफ, आप भी थोड़ी तारीफ कर दी तो वैसे हमारे प्रोफेसर भी मुझे कर देते. तो उस वक्त उन्होंने
मेरा MA इकोनॉमिक्स हो चुका था। ये प्रोफेसर थे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल हेड इकोनॉमिक्स के। तो उस वक्त उन्होंने कहा आई एम ऑफरिंग यू एन ऑस्ट्रेलियन नेशनल फेलोशिप टू डू PhD अंडर हिम। इट वाज एन ऑफर, बट ही सेड 3 things। ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसने बोला व्हेन इफ यू एक्सेप्ट दिस फेलोशिप it will be for a time period, 3 साल, 3 साल का होता है, and you are not going to ask an extension, no more money. 3 years you have to finish your job. Okay Jack, I'll do it. Second, ये उन्होंने जो बोला मैंने वही किया। मेरा all paid employment is only in India. That's good. मैं फॉरेन में $1 भी नहीं कमाया, no salary. Okay, because I respected my employer. The third thing, he said, now you will laugh. He said, you have to come married. Okay, ये मैच में कर रहे हैं क्या? या मेरे ग्रैंडफादर ने? मैं बोला वही, what is it? You have to come married. Okay, so how we selected a girl is another story. आप ये दोबारा बुलाएंगे तब बोलूँगा। मगर important point जो बोलने वाला हूँ अभी, the reason why he said married is there was a Commonwealth scholarship program. कुछ लोग हैं तो उसमें बहुत सारे एशियन, साउथ एशियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, श्रीलंकन्स, ये सब पूरे वर्ल्ड में जाते थे अच्छी तादाद में, 20, 25, 50, 100 इस तरह से यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज पैसे दे रहे हैं इंडियंस को। बट वहाँ जाने के बाद वो जो लिमिटेशन लगाया ना 3 साल का, वो ब्रेक कर रहे हैं। अब वहाँ जाने के बाद 3 साल पढ़े, थीसिस नहीं सबमिट करी, 2 महीने एक्सटेंड करो, 3 महीने एक्सटेंड करो, और 1 साल एक्सटेंड करो, एक्सटेंड ही हो रहा है। ये एक मुत्तैया करके था, वो 8 साल से वहाँ पढ़ा हुआ, मगर मुत्तैया वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो उसे इंटर्नशिप मिल गई, वो पढ़ा के पैसे भी कमा रहा था। दैट इज व्हाई ही वाज नॉट फिनिशिंग हिज PhD, बिकॉज ही वाज अर्निंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर। द सेकंड थिंग ही सेड इज लॉट ऑफ दीज इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बॉयज वो जाके गोरी लड़कियों के चक्कर में फंस गए, स्टडीज खत्म नहीं हो रहे हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स, तो इस तरह के माहौल को अंडरस्टैंड किया, एंड ही न्यू माई फैमिली वेल। I belong to the family of me, eldest brother and 6 sisters. मेरी सबसे छोटी sister is about 22 years old. When my father died, she was 1 year old. And now she is a vice president in Washington DC in a IT company. So at that time, शादी हो गई. So I went to a village. I told Shahnaz, you have to also learn a bit of interviews. तो शादी हुई तो एक हिंदू घर में मैं पहुंच गया, शाहनाज को लेके। शाहनाज बोले यू हैव टू लर्न, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू गो टू ऑस्ट्रेलिया टू राइट माई थीसिस। सो आई वॉज देयर इन ए विलेज, 3 विलेज सेटअप फॉर 18 months। 320 फैमिलीज की स्टोरी मैंने मेरी किताब में लिखी। आई न्यू एवरी फैमिली person by name and face, and उनकी story, how much they earn, what they do, you know, vulnerability, food, income, health, जो भी आप समझो, everything I have documented। So ये family में के माहौल जो है ना, अंदरूनी हालात, मुझे 1 घंटे का वक्त चाहिए, पूरे अंदरूनी हालात मैं खोल के बता दूंगा आपके घर के, अगर आप मुझे बुलाइए इंटरव्यू करने के लिए। सोचना पड़ेगा। तो उस वक्त क्या हुआ, एक इवनिंग में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शहनाज बैठी हुई थी, मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, मैं कर रहा था, शहनाज यहाँ बैठी हुई थी, उनको मालूम था हम दोनों मैरिड हैं। तो वहाँ पे एक बैल बंधा हुआ था, और एक नहीं बहुत सारे मवेशी थे वहाँ पे, और उसमें से एक मवेशी पेशाब करने लगा। तो ये दौड़ा दौड़ा वो बांधता हुआ भागा, वहाँ जाके पीने लगा।
आई थिंक सम पीपल डू इट, वो उनका अपना है। ये चुप हो गया। बाद में उसने क्या किया, वहां से आया, हाथ में इतना ले आके हमारे दोनों ऊपर फेंक दिया। So tell me what this is. Tell me what is this? What is this gesture? आप बोल सकते हैं? Yes, bless. मगर है चीज़ जो हम समझते हैं कि कोई दूसरा मुसलमान होता तो शायद उसका गला भी काट देता, मुझे पता नहीं। पेशाब है, गिलाजत है, तहारत, अब हमारे कॉन्सेप्ट, मगर यहाँ के अंदर हमें ये समझना है कि हमारी सोसाइटी इतनी इंटीग्रेटेड है, इतनी प्यारी है, छोटे छोटे चीज़ों के अंदर हमें समझना चाहिए कि हाउ कोहेसिव सोसाइटी वी हैव टू बिल्ड अप। सो दिस इज ए लिटिल बिट लॉन्ग इंफॉर्मेशन बैक। नाउ आई वांट टू मूव ओवर टू एजुकेशन। नाउ आई वांट टू स्टार्ट विथ 2 एनेक्डोट्स। व्हाट इज दिस मिशन? ये है पेपर्स, साहब के ऑफिस में इसके कॉपीज जितने चाहिए मिल जाएंगे, सॉफ्ट एंड हार्ड, बट 2 एनेक्डोट्स। I start from Mumbai. So, yesterday afternoon, I went to his another campus, अंजुमन का कैंपस इन बैंड्रा। वो आए क्या, वो हमारे प्रिंसिपल वो बताए थे आएंगे। इजी है सबा, हाँ नहीं जेंटलमैन, हाँ। So it is important to talk to him again. I will talk to him. So they were doing a review of what is happening there, and I sat there. So उस वक्त टीचर्स वो बोला रहे थे, ABCD लिखा हुआ है, मराठी में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, और वो डिस्कस कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की बात हो रही है, और वो अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल ही लोअर लेवल। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? So I asked him, what are you talking about? What is the standard in which you are teaching this? This is यानी 8वीं क्लास में हैं बच्चे, they don't know मराठी। 8वीं क्लास में हैं बच्चे, they don't know English। 8वीं क्लास में हैं बच्चे, तो उनका बच्चों का बैकग्राउंड मुझे अभी मालूम नहीं है, मगर कौन से स्कूल से आए हैं वो मालूम। म्यूनसिपल स्कूल से। हाँ, तो अब म्यूनसिपल स्कूल से हैं। 8th में वो हमारे स्कूल में आते हैं म्यूनसिपल। वो सेकंड में जाइए, सेकंड पेज में, और नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे ये वी विल डिस्कस दिस, बट दिस इज द डेटा, इट इज़ नॉट ईजी टू कलेक्ट। आई हैव ट्राइड टू कलेक्ट, दिस इज द बेस्ट। And then NEPA and NCRT, I have collected, whatever. We'll come to this later. तो यहाँ पे ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? कॉर्पोरेशन स्कूल से, और उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे हैं, एक जुबान के, और 8वीं क्लास में जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है अभी? वहाँ से there is some sort of trap. I call that a trap. Who is putting the trap? We will come to that. Is it people? Is it the community? Is it the parents? Is it the system? People pay taxes, government collect taxes, and government has to plow back education. State government spend up to 30-35% of the total budget on education, and another 20-25% of total budget on health. This every state does. वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं कि है ये बच्चे टैक्सेस नहीं देते। अरे यही तो टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं वो टैक्स नहीं देते, यही लोग देते हैं। क्योंकि आप एवरीथिंग यू परचेज, ए बिस्किट, ए पेन, एनीथिंग, उसके अंदर टैक्स है। सो दे पे टैक्स ऑल्सो। हम नहीं कह सकते कि ये उनका पैसा नहीं है, वो चैरिटी नहीं है उनको पढ़ाना। और एजुकेशन is nobody's ownership. Education, पाइथागोरस थ्योरम किसने बनाया था? पाइथागोरस। कौन से साल बनाया था? कितने साल पहले? किसके लिए बनाया पाइथागोरस?
फ्यूचर जनरेशन के लिए. नाउ इट्स समबडी कैन ओन इट नाउ. ऐसे ओके जब तक पैसा नहीं देगा मैं पाइथागोरस नहीं पढ़ूंगा. किसकी देन है वो? He gave it to the humanity and now we are making money out of it and we are denying these children that we don't want to teach unless you give money. So आप देखिए basic education human right issue. It has to be given free of cost. It must be given. It is every child's right. तो ये ट्रैप मैंने ये बता दिया. Particularly for you. I'm going to talk to you later also. In Karnataka, ये Karnataka, I come from Karnataka, but Karnataka is a kind of nice state. उसमें BJP government भी रही, but the BJP government which was removed recently, it is one of the most Muslim friendly government. वो वहाँ ऊपर दिल्ली से क्या बोलेंगे कुछ नहीं. यहाँ वाले अपना काम करो, वो पॉलिटिक्स को छोड़ो, अपना काम करो. एंड दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर.